हमारे ओ हमारे साहब काशी राम करते हम सब तुम्हें सलाम। हमारे साहब काशी राम तुमको लाखों लाख प्रणाम। हमारे साहब काशी राम तुमको लाखों लाख प्रणाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। हमारे साहब काशी राम करते हम सब तुम्हें सलाम। फिर से जन्म लो भारत में तुम्हें सारा देश पुकारे। तुम्हें सारा देश पुकारे। फिर से जन्म लो भारत में तुम्हें सारा देश पुकारे। तुम्हें सारा देश पुकारे। आपके जैसे महापुरुष दुनिया में होते विरले, कर गए जग में रोशन नाम हमारे साहब काशी राम। हमारे साहब काशी राम करते हम सब तुम्हें सलाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। हमारे साहब काशी राम करते हम सब तुम्हें सलाम। মায়াবতী জি, বাবা সাহেব ও কানসিয়ান জি কাজকে এগিয়ে চলেছেন, তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের এই রাজ্য অফিসে যে বাবা সাহেবের কানসিয়ানজির জন্মদিনের শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর এবং উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয় ধর্মবীর সিংজিকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কানসিয়ানজির সম্বন্ধে দু এক কথা বলে আমাদের বাকি যে কানসিয়ান সম্পর্কে বিস্তারিত আমাদের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর এবং প্রাক্তন যে মন্ত্রী মাননীয় ধর্মবীর সিং অশোকজি বলবেন। যে কানসিয়ানজি সঙ্গে আমার পরিচয় হচ্ছে 19শে সেপ্টেম্বর দেখেছি আমাদের নিউ ব্যারাকপুরে আমাদের বাড়ি যেখানে, সেখানে বিডি লজে প্রথম আসেন। সন্ধ্যা 7টার সময় আসার কথা, উনি 9টার সময় এসেছিলেন। এই প্রথম দেখা বিডি লজে 19শে সেপ্টেম্বর 1988 সালে। তারপরে 20 সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া, তারপরে মিডিয়া প্রোগ্রাম ছিল। সকালবেলা ওনার সঙ্গে নিউ ব্যারাকপুরে কানসিয়ানজি ছিলেন। ওনার সঙ্গে একটা গাড়ি অ্যাম্বাসেডার আর একটা জিপ ছিল। আমরা প্রায় আমরা 8 জন ড্রাইভারের জিপে, আর হচ্ছে 5 জন 13 জন জিপে ছিলাম। কানসিয়ানজির সঙ্গে 3-4 জন ছিলেন। তো 20 তারিখ থেকে 22 তারিখ রাত পর্যন্ত ছিলাম। 23 তারিখে আপনার হচ্ছে লক্ষ্যান্তরের মিটিং ছিল। তারপরে 23 তারিখে রাত্রে দার্জিলিং মেল ধরে শিলিগুড়ি মানে জলপাইগুড়ি গেছিলেন। তো সেই কথা বলি যে ওই সময় কানসিয়ানজি যে স্লিপার ক্লাস বুঝতে পারছেন তো, এসি না, স্লিপার ক্লাসে কানসিয়ানজি ওই দিনকে পেয়েছিলেন। আবার জানুয়ারি মাসের 4 তারিখে 1989 সালেও ওই স্লিপারের ক্লাসে গেছিলেন। সাইডের সিট পড়েছিল, তো কানসিয়ানজি লম্বা ছিল। বলছে ভাই শোবো কীভাবে এবার। তো এইভাবে কানসিয়ানজি কিন্তু এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছেন। রোহিঙ্গির কীরকম এই আন্দোলন, আমার একটা দিনের কথা মনে আছে, সেটা হচ্ছে নাগিনাতে বহিঞ্জির সঙ্গে গেছিলাম। তো নাগিনাতে পিডব্লিউডির গেস্ট হাউস ছিল, সেখানে তখন বহিঞ্জি 90-তে এমপি। তো নাগিনা ওখানকার যে ওয়ার্কার মিটিং ছিল নাগিনা পিডব্লিউডি গেস্ট হাউসে, তো বহিঞ্জি বিভিন্ন লোকের সাথে আলাদা আলাদা কথা বলছে।
তো জল তেষ্টা পেয়েছিল বহিনজি। তো বহিনজি জল তেষ্টা পাওয়ার পরে বহিনজি কী করেছে, বহিনজিকে ওখানে একটা টিউবওয়েল ছিল, মানে হ্যান্ড পাম্প বলে না, হ্যান্ড পাম্পগুলো গেছে মুখ যেদিকে থাকে তার উল্টো দিকে হ্যান্ডেল থাকে, আমাদের তো সাইডে থাকে উল্টো। তো ওই হ্যান্ড পাম্প থেকে একটা ছোট্ট ঘটিতে বহিনজিকে জল দিয়েছে। বহিনজি একদম আমার একদম মানে এরকম হাত দিয়ে বহিনজি করলো, ওই ঘটির জলটা নিয়ে এরকম করে খেয়ে এরকম করে মুছে নিল। তখন স্ট্যান্ডিং এমপি, আর তখন আমাদের হচ্ছে হলিউডের জেনারেল সেক্রেটারি। তো এই যে মুভমেন্ট আজকে আমরা একত্রিত হয়েছে, এটা সাহেব এবং বহিনজি জীবনের প্রতিটি অঙ্গে প্রতিটি জায়গায় কঠোর পরিশ্রম কঠোর ত্যাগের পরে আজকে কিন্তু আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। প্রত্যেকটা জিনিস বহিনজি এবং কানশিয়ানজি মানে তাদের যে ত্যাগ, সেই ত্যাগ যদি সত্যিকারের যারা দেখেছে, সত্যিকারের তাদের ত্যাগের কল্পনা করা যায়। মানে বর্তমানে যদি আমাদের কোনো এমপি হয়, তাকে যদি ঘটিতে জল দেওয়া হয়, তবে তাদের সে তো মানে মানে কিন্তু বহিনজি এইভাবে এই মুভমেন্টটাকে এইভাবে জানিয়েছে। তো কানশিয়ানজির ত্যাগ তো আরও বেশি, আরও অনেক বেশি ছিল, কারণ তখন তো কিছুই ছিল না, জানতোই না লোকে। তো তিনি যে এই জায়গাটা তুলে এনেছেন, এটা ইতিহাসের পাতায় কীভাবে লেখা থাকবে জানি না, কিন্তু আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এটা প্রচণ্ড থাকবে। তাই আজকে এই ব্যাপারে আমি তো উত্তরপ্রদেশ, আমি তো এখানকার লোক, আমি তো পরে দেখেছি উত্তরপ্রদেশ আমাদের যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় ধর্মেশ সিং, তিনি আরও অনেক আগের থেকে দেখেছেন তার ত্যাগ, বহিনজির ত্যাগের কথা। আমি তখন জানিও না তোমার পার্টি সম্পর্কে। তো সেই বিষয়ে যতখানি পারে এই সময়ের মধ্যে তিনি আপনাদের সামনে কানশিয়ানজি বহিনজি সম্পর্কে কিছু কথা বলবেন, এই বলে আমার এই ছোট্ট আজকের এই বক্তব্যটা শেষ করছি। और बोलूँ मैं तो हिंदी में बोलूँगा। হ্যাঁ, हिंदी बोलले सबाई बुझबे समझ में आएगा। आप थोड़ा सा मुझे महापुरुषों को नमन करते हुए आज बामसेव DS4 DSP के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के 89 में जन्म दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज हावलादार जी, हमारे कोषाध्यक्ष नायक कुमार विश्वास जी, प्रांतीय महासचिव राय जी, और इस अवसर पर सभी प्रदेश के जिम्मेवार पदाधिकारीगण, सम्मानित साथियों। वैसे आज खुशी का दिन है कि आज के दिन ही मान्यवर कांशीराम साहब ने पंजाब प्रदेश में रोपड़ जिले में खबासपुर गांव में एक रमदसिया चमार परिवार में जन्म लिया था। उनकी शिक्षा दीक्षा पंजाब में हुई और BSc करने के बाद उन्हें जॉब मिली महाराष्ट्र के अंदर पूना में एक साइंटिस्ट के पद पर, और उस समय इतनी बड़ी पोस्ट मिलना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब तक वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन 1964 में
भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा और बाबा साहब के 14 अप्रैल के अंबेडकर जयंती के जो पूरे देश में छुट्टियां होती थीं, उनको वहाँ के डायरेक्टर ने रद्द किया और उनके स्थान पर रामनवमी और दूसरे त्यौहार के रूप में उन छुट्टियों को बढ़ाया गया। इस बात को लेकर वहाँ के कर्मचारी जो दीना भाना थे, उन्हें रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने सभी दलित समाज के, ओबीसी समाज के जितने भी बाबा साहब के बारे में लोग जानते थे, उन सबके साइन से एक लेटर तैयार किया कि हमें छुट्टी चाहिए, उस दिन की छुट्टी होनी चाहिए। और वो लेटर डायरेक्टर को सौंप दिया गया। डायरेक्टर ने एक एक व्यक्ति को बुलाया और उनसे कहा कि बताओ तुमको छुट्टी चाहिए या नौकरी चाहिए। सब लोग असमंजस में पड़ गए क्योंकि सबको नौकरी प्यारी थी। तो उन सब ने कहा कि हमें नौकरी चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए। जब दीना भाना का नाम पुकारा गया और उनके पास गए तो उन्होंने उनके सामने उन सब के जो लिख करके दिया था कि हमें छुट्टी नहीं, हमको नौकरी चाहिए, अब आप बताइए आपको छुट्टी चाहिए नौकरी चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। इस बात को लेकर वो दिन आया 14 अप्रैल और वो छुट्टी पर ऑफिस ना जाकर अपने घर पर रहे, अंबेडकर जयंती को मनाया। जब अगले दिन वो ऑफिस गए तो उनके हाथ में निलंबन का एक पत्र सौंप दिया गया कि आपको सस्पेंड किया जाता है कि आपने बगैर अनुमति के आप ऑफिस से गैर हाजिर रहे। इस बात को मान्यवर कांशीराम साहब को साझा किया गया और उन्हें बताया गया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने उनका साथ दिया, केस लड़ा, केस में विजयी हुए। लेकिन उन्हें एक अचंभा हुआ कि इस व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिया। ऐसी कौन सी बात है डॉक्टर अंबेडकर में जो इन्होंने ऐसा किया। तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक किताब उनके हाथ में सौंपी, जात भेद का उच्छेद, जो बाबा साहब ने लिखी थी। और वो लाहौर में जाति पाति तोड़ो मंडल ने उनको एक जनसभा का अध्यक्ष नामित किया था कि आप उसको संबोधित करेंगे। तो वहाँ के लोगों ने बाबा साहब से पहले लिखित में मांग लिया कि आप कौन सा भाषण देंगे। तो उन्होंने लिख करके दे दिया। तो वहाँ की कमेटी ने जब उस भाषण को पढ़ा तो उन्होंने उन्हें उनसे मिले बाबा साहब से और उन्होंने उनसे कहा कि भाषण तो आपका ठीक है, लेकिन इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं
वेदों का जिक्र और थोड़ा सा कुछ और अगर इनको हटा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि पैराग्राफ छोड़ो, वाक्य छोड़ो, अगर तुम ये कहोगे कि इसमें से कोई कॉमा हटा दिया जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। इस बात को लेकर जाति तोड़क मंडल ने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया और फिर बाबा साहब ने उस भाषण को कास्ट इन इंडिया के साथ भारत में जातिवाद का उच्छेद, इसको जो है उन्होंने छपवाया और इसको लेकर के गांधी ने भी विरोध किया था, आलोचना की थी कि देश में एक तो अंग्रेज हमको आपस में लड़ा रहे हैं, ऊपर से आप भी इस जातवाद के भेद को उल्लेख करते हो, तो ये अच्छा नहीं है। तो बाबा साहब ने जब उनका इस बात को लेकर आलोचनाएं हुई तो उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को एबला के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये तो उससे पहले ही वो घोषणा कर चुके थे, लेकिन उस पर ज़्यादा अमल करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी के साथ 21 साल लगाए और हर धर्म का अध्ययन किया। इस्लाम का भी अध्ययन किया, सिख धर्म का भी, ईसाई धर्म का भी, लेकिन वहाँ हर जगह कुछ न कुछ ऐसा मिला जो उनके मन को नहीं भाया। क्या मिला? जो बुद्ध ने कहा था, या बुद्ध के बाद लोगों ने उस पर रिसर्च किया तो हर kiसी को महसूस हुआ और बाबा साहब को भी ये महसूस हुआ कि इस्लाम में मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, अल्लाह का, खुदा का आखिरी पैगंबर हूँ, मैं ही असली दूत हूँ, मेरे बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं होगा। इससे बढ़कर ईसाई धर्म में यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, और लोग तो हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है, कृष्ण हिंदू नहीं थे, उस समय हिंदू धर्म भी नहीं था, कोई हिंदू शब्द भी नहीं था, फिर कौन थे वे? राम भी जैन थे और कृष्ण भी जैन थे और सम्राट अशोक भी जैन थे। ये सम्राट अशोक के बारे में तो क्लियर कट है कि उनके पिता दादा जो मौर्य थे, वे अपना राजकाज छोड़कर और जैन सन्यासी होकर वे ग्रस्त से अलग हुए और उन्होंने पहाड़ों पर जाकर अपना अंतिम सांस लिया। उनके बारे में तो अच्छी तरीके से पता है
कि वो जैन थे, तो जब वो जैन थे तो उनका बेटा भी जैन और पोता भी जैन। लेकिन अशोक बौद्ध क्यों हुए? कलिंग की लड़ाई के बाद जब उसमें लाखों लोगों की हत्याएं हुई, तब उनका मन बदला और उन्होंने जैन धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। एक उपगुप्त भिक्षु थे, उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। तो बाबा साहब ने ये जब पढ़ा कि हिंदू धर्म में कृष्ण ने खुद अपने आप को भगवान और ईश्वर की उपाधि दी है, लेकिन जब बुद्ध को पढ़ा तो बुद्ध ने कहा, वैसे तो उन्होंने खंडन किया, ईश्वर का भी खंडन किया, स्वर्ग नरक का भी खंडन किया, जातवाद का भी खंडन किया, और उन्होंने कहा कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं, और कोई भी बौद्ध हो सकता है, कोई भी बुद्ध बन सकता है, मैं आखिरी बुद्ध नहीं हूं। और मैं एक चिकित्सक हूं, डॉक्टर हूं, मैं इलाज बता सकता हूं, कर सकता हूं, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा, दवाई आपको खानी पड़ेगी। तो उनका मन बाबा साहब का इस बात पर टिक गया कि बुद्ध धर्म में मानवता को प्रमुखता दी गई है, मनुष्य को प्रमुखता दी गई है। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर 14 अक्टूबर 1956 को 21 साल के बाद बुद्ध धर्म स्वीकार किया था। लोग बगैर सोचे समझे सिर्फ कही हुई बात पर आकर धर्म छोड़कर जब कोई दूसरा धर्म अपनाते हैं और उसके बारे में जानते नहीं, तो फिर वो भी भटकते हैं कि इससे तो हम पुराने ही ठीक थे। लेकिन यदि जानकर, जैसे बाबा साहब ने 21 साल लगाए थे, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, उन्होंने खूब जांच परख करके कि यही है असली धर्म, जो मानव धर्म है, जिसमें मानव को प्रमुखता दी गई है, मनुष्य को प्रमुखता दी गई है, और समता, स्वतंत्रता और भाईचारे को प्रमुखता दी गई है, तो मैं ऐसे धर्म को स्वीकार करता हूं। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के बारे में जब उन किताबों को पढ़ा तो उन्हें और दिलचस्पी हुई और बाबा साहब के बारे में पूरा अध्ययन किया, और उन्हें महसूस हुआ कि हम कोई भी जतन कर लें, जब तक हम ताकतवर नहीं बनते तब तक हम पर जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे। और ताकतवर कौन बनता है? जिसके पास सत्ता होती है। जो सत्ता में नहीं होते उनके ऊपर जुल्म होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उन लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, चाहे किसी भी समाज के हैं। कमजोर कमजोर होता है, ताकतवर ताकतवर होता है। तो उन्होंने बाबा साहब की इस बात को स्वीकार किया कि हमें शासक बनना ही पड़ेगा, और तब उन्होंने दीना भाना को तो निकाला गया था, सस्पेंड किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन किया।
कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जहां पर एक महामानव के नाम की छुट्टी को लेकर उसकी नौकरी छीनी जा सकती है। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि हम लोग कमजोर हैं और मुझे इस देश के लोगों को जगाना है, उन्हें शासक बनाना है। और वो निकल आए, ऑफिस से बाहर आ गए। कई दिन सोचने के बाद, 1-2 महीने सोचने के बाद परेशानी में भी पड़ने लगे, क्योंकि पेट को खाना चाहिए और खाना पैसे से आता है और पैसा रोजगार से मिलता है। तो रोजगार तो गया अच्छे, कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं है। तब वो घूमते फिरते एक शिकंजी बेचने वाले के पास आकर एक तिपाई पे बैठ गए और गर्मी में वो सोच रहे थे और सोचते सोचते उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए भी एक गिलास शिकंजी बना दो। और वो इस तरह से सोच रहे थे बैठे बैठे, एक हाथ यूं था और एक हाथ यहाँ था। तो उस शिकंजी बनाने वाले ने एक नींबू के 2 टुकड़े किए और आधे नींबू को लकड़ी के 2 पाटों के बीच में रखकर उसको दबाकर उसका जूस निकाल दिया और उठाकर उसको यूं उछाल दिया ऊपर को। वो आधा टुकड़ा निचला हुआ मानव कांचराम साहब के हाथ पे आकर पड़ गया। उन्होंने देखा, अरे इसने तो इस नींबू पे ऐसा निचोड़ दिया जैसे मेरे समाज को मनुवादियों ने निचोड़ रखा है। और जब दूसरे हाथ से उसको उठाया तो उनका अंगूठा गीला हो गया। बोले कुछ जान तो है, ये जान किसमें है? जो मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके पास जान है, उनके पास धन भी है, उनके पास दिमाग भी है, उनके पास प्लानिंग भी है। अगर मैं इन तीनों का उपयोग करूं और इन लोगों को जगाऊं तो शायद मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। ये ख्याल आ रहा था मन में, लेकिन बाबा साहब का 18 मार्च 1956 को दिया हुआ भाषण उनके दिमाग में आ गया कि बाबा साहब ने तो इन पढ़े लिखे लोगों को नालायक शब्द की संज्ञा दी है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, ये नालायक लोग हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि बाबा साहब ने जिनको नालायक कहा है, मैं उन्हीं में लायकी पैदा करके मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। और तब उन्होंने पूरे देश में भ्रमण शुरू किया और सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से मिलते हुए चले गए और अपनी प्लानिंग बताई। कुछ लोगों की समझ में आई, कुछ लोगों की समझ में नहीं आई। और उन्होंने उन्नीस 1973 में दौरा करने के बाद 4-5 साल मेहनत करने के बाद उन सब लोगों को इकट्ठा किया और बुलाया और उनसे कहा कि बाबा साहब ने आप लोगों को नालायक की संज्ञा दी है, मैं आप लोगों को लायक वर देखना चाहता हूं। और बाबा साहब ने जो अपने महापुरुषों के द्वारा सीखा, महात्मा ज्योतिराव फूले के माध्यम से, नारायण गुरु के माध्यम से, छत्रपति साहू जी महाराज के माध्यम से, और उन्होंने अपना सारा जीवन कष्ट उठाकर संघर्ष करके
और आपको जो ये अधिकार दिलाए, आज जो ये आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने बैठे हो, सूट बूट और टाई में बैठे हो, अगर बाबा साहब ने संघर्ष ना किया होता तो आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ होता। बाबा साहब की वजह से आपके पास आज धन भी है, क्योंकि आपको हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। आपके पास दिमाग भी है, क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ लिख करके आते हो। आपके पास प्लानिंग भी है, क्योंकि इस देश की सारी प्लान सरकारी अधिकारी तैयार करते हैं। तो आप लोगों को अगर मान सम्मान का जीवन जीना है तो आपको अपने पूर्वजों के, चाहे वो पेरियर रामास्वामी नायकर, चाहे बाबा साहब, चाहे फूले, चाहे नारायण गुरु, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। और तुम्हें आत्म सम्मान का आंदोलन चलाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, उन्होंने कहा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कैन नॉट बी विदाउट सेल्फ हेल्प। बिना अपनी स्वयं की मदद के हम अपने आत्म सम्मान का आंदोलन नहीं चला सकते। इसके लिए फिर क्या करना है? फिर आपको ये सोचना है कि आज जो आपको एक नौकरी मिली है, आप कहते होगे हमने मेहनत की है, पढ़ लिख करके आए हैं, तो मेहनत तो हमारे पूर्वजों ने बहुत की थी, दादा परदादा ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उनको ये सम्मान नहीं मिला जो तुम्हें मिला है। तुम्हें इसलिए मिला है कि उन्होंने सारा जीवन भर तुम्हारे लिए कष्ट उठाए। तो आपको भी इस मनी माइंड और डायरेक्शन को पे बैक टू सोसाइटी, जिस समाज में तुमने जन्म लिया है उस समाज का तुम पर कर्जा है। इस कर्जे को यदि तुमने नहीं पटाया तो तुम बेईमान कहलाओगे, और यदि आपने इसको पटाया तो आप ईमानदार कहलाओगे। तो आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? नहीं। लोगों ने कहा हम तैयार हैं। तब उन्होंने पूरे देश के अंदर सेमिनार आयोजित किए, गोष्ठियां आयोजित की। लगभग 500 के आसपास उन्होंने पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। और जब उनके पास काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को 5 साल के बाद बामसेफ नाम की संस्था बनाई। BAMCEF, बी से बैकवर्ड, बैकवर्ड में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ए से एंड, एम से माइनॉरिटीज, सी से कम्युनिटीज, ई से एम्प्लॉइज, एफ से फेडरेशन। पूरा नाम हिंदी में उनका अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और जो अल्पसंख्यक थे, धार्मिक अल्पसंख्यक, उनका एक संगठन, फेडरेशन, संघ बनाया गया। और उसके माध्यम से फिर लोगों में चेतना पैदा की। तो मान्यवर कांचीराम साहब ने सोचा कि हम बामसेफ से लोगों को जगा तो सकते हैं, लेकिन हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सरकार से मुकाबला नहीं कर सकता, और हमको सत्ता के लिए राजनीति में जाना है, तो उससे पहले हमारे समाज को तैयार करना पड़ेगा। तब उन्होंने 6 दिसंबर 1981 को बामसेफ के जो लोग नौकर थे, बामसेफ के जो साथी नौकर थे,
उन लोगों की पत्नी और बालिग बच्चों को, या जो पत्नी नौकरी में थी उसके पति और बालिग बच्चों को DS4 का सदस्य बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। और DS4 के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चलाए, प्रदर्शन किए और धरना दिया। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल भी किया राजनीति में। DS4 के तत्वाधान में 1982 में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा 3 प्रदेशों में चुनाव लड़ा। उस चुनाव में DS4 को 1% वोट मिले। तब माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि अब हम राजनीति में कूद सकते हैं। तब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उसके माध्यम से पहला चुनाव उसी वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या हो गई और दिसंबर 1984 और जनवरी 1985 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में 1.5% वोट मिला और उसी साल उत्तर प्रदेश में अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल में विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में हमें 2% वोट मिले। उसके बाद 1986 में एक बिजनौर के अंदर MP की डेथ हो गई। वहां पे उपचुनाव हुआ और वहां पर बहन कुमारी मायावती जी BSP की उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ी और उस चुनाव में 66,000 वोट मिला। तो राजीव गांधी की नींद हराम हो गई, जिसको 419 MPओं का समर्थन मिला था। 1984 में सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों से पूछा कि भाई ये कौन है BSP, किसकी पार्टी है? तो कांग्रेस के चमचों ने कहा कि ये सरकारी कर्मचारियों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी कैसे चुनाव लड़ सकते हैं भाई? नहीं, उनका नेता कांशीराम है, वो उनके नेतृत्व में काम करते हैं। वाम सेठ के माध्यम से इसका प्रचार किया जाता है। तब उसने पूछा कि कौन कौन लोग हैं, तो कुछ लोगों के नाम बताए गए। उसमें एक नाम आया कि ये तो मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, इसको बुलवाओ। और उसको लाल बत्ती की गाड़ी भेजकर उनके घर पर उसको बुलवाया गया और उससे बातचीत हुई कि भाई मैंने सुना है आप BSP के लिए काम करते हो। उसने कहा नहीं, मैं BSP के लिए काम नहीं करता। फिर क्या करते हो? तो हम वाम सेठ चलाते हैं। अरे वही तो असली जड़ है, वाम सेठ ही तो है। अब कांशीराम तुम्हें क्या दे देगा? मैं तुमको रिटायरमेंट के बाद आयोग का अध्यक्ष बना सकता हूं। जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट के एक जज को राज्यसभा में भेज दिया, एक को राज्यपाल बना दिया, वैसे ही उसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि मैं तुमको ऐसा कर सकता हूं। तो जब किसी को लालच आ जाए तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो उसने आते ही अगले दिन वाम सेठ की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में अपनी बात रखी। क्या रखी कि कांशीराम जी हमें जवाब दो, आपने वाम सेठ बनाए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, DS4 बनाए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, BSP बनाए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, बहुजन संगठक अखबार निकालते उसके संपादक प्रकाशक आप, और बहुत सारे विंग BRC वगैरह सबके
राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, हम इतने पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, क्या हम पागल हैं? किसी का हमें आप नहीं बना सकते? उन्होंने कहा भाई तुम राजनीति तुम करो, बाम सेब को हम चलाएंगे। तो कांशीराम साहब ने खड़े होकर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैं उसका नाम बता रहा हूं किसको जवाब दिया। उसका नाम था तेजेंद्र सिंह झिल्ली, वो भी पंजाब का ही रहने वाला था। घर का भेदी ही, घर का ही भाई हमेशा दुश्मनी पैदा करता है। और उस झिल्ली को जवाब दिया कि भाई झिल्ली तुम्हारी बात में दम है, मुझे सबका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं ये जानता हूं अपने समाज के बारे में, मुझे खूब अनुभव हो चुका है कि मेरा समाज बिकाऊ है। क्यों बिकाऊ? क्योंकि वो कमजोर है, दबाव में आ जाता है, लालच में आ जाता है। जिसने कभी 10 रुपए का नोट ना देखा हो, उसके सामने यदि 500 रुपए का नोट लहरा दिया जाए तो उसके मुंह में बहुत जल्दी पानी आ जाता है। मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं समाज के लिए तो कर रहा हूं। जिस दिन मुझे यह एहसास हो जाएगा कि झिल्ली मेरे घुटने के बराबर आ गया है और उसके अंदर कोई लालच नहीं है, तो मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये बात झिल्ली को बुरी लग गई और उसने कहा अच्छा हमको बेईमान बता दिया, हम बेवकूफ हैं, अब देखते हैं तू कैसे करेगा। और उसने अगले दिन जाकर कागज लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय में बाम सेब का रजिस्ट्रेशन करा लिया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठा। लोगों ने माननीय कांशीराम साहब को आगे बताया कि साहब ये तो बाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो गए। साहब ने कहा चिंता मत करो, उनकी बाम सेब सरकारी बाम सेब है, हमारी बाम सेब शैडो बाम सेब है। जिसका सरकारी रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो चीज सरकारी हो जाती है। आरएसएस का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसी प्रकार बाम सेब का भी हमारी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जैसे मनुष्य की छाया होती है, परछाई होती है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार हमारी बाम सेब है। और धैर्य रखो, बुरे उद्देश्यों पर आधारित कोई भी संगठन ज्यादा दिन नहीं चलता। और उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। 10 जून 1986 को बाम सेब का रजिस्ट्रेशन हुआ और 2 साल के बाद 1988 में ही उसके 2 टुकड़े हो गए। खापड़े अलग हो गया और झिल्ली अलग हो गई। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे और फिर 1990 में फिर दोनों के टुकड़े हो गए। खापड़े में से बाबा मेसराम और झिल्ली में से जितेंद्र, 4 बाम सेब हो गई। फिर 92 में 2 साल के बाद फिर चारों के टुकड़े हो गए, 8 हो गए। किसी में से उदित राज, किसी में से मानेकर, किसी में से भंडारे, किसी में से कामले। और 1994 में फिर हो गए, 16 टुकड़े हो गए। बाबा मेसराम में से बीडी बोरकर अलग हो गए। दोनों के सम्मेलन गुजरात में, एक का गांधीनगर में और एक का अहमदाबाद में, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो साहब का कहना था
कि जो लायकवर लोग होते हैं वे दुश्मनों से मुकाबला करते हैं और जो नालायक लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं। ये ऐसा ही चलता रहेगा। नालायक लोगों को की भी कमी नहीं रहेगी और लायकों की भी कमी नहीं रहेगी। इसलिए चिंता मत करो। आप जो है इस बाम सेब को जो शैडो के रूप में है इसको तैयार करो और हम बीएसपी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाएंगे। बहुत सारे एमपी एक जगह इकट्ठे हुए थे और सब अपना अपना रोना रो रहे थे। हर दल के साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मैदान में ये बात कही थी कि अगर आप लायकवर हो तो राष्ट्रीय संगठन आपका एक दिन में बन जाएगा, लेकिन आप लोग नालायक हो। लेकिन मैं आपके सामने ये विश्वास दिला करके जा रहा हूं कि बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हुई और वो हुआ 1996 में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और सत्ता में भी आई। सत्ता में तो 1993 में ही आ गई थी, लेकिन 1995 में बहन जी मुख्यमंत्री बनी, 97 में बनी, 2002 में बनी और 2007 में बनी। 5 साल के लिए सब लोगों ने जो कुछ भी करना था, कांग्रेस विरोध में थी, दूसरी पार्टियां विरोध में थी, लेकिन उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। लेकिन जब 2012 में सत्ता से बाहर हुई तो अपने लोग ज्यादा सवाल करते हैं, दुश्मन सवाल नहीं करते। साहब यूपी में क्या हुआ, यूपी में कैसे चलेगी सरकार, क्या हुआ, अब तो आने वाले नहीं हो। मनोबल गिराने का काम करते हैं, कोई मनोबल बढ़ाने का काम नहीं करते। और जब तक ये चलता रहेगा आप लोग एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते रहोगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। मान्यवर साहब के जन्मदिन पर यदि आप लोग उनकी जयंती मना रहे हो तो सिर्फ अमर रह के नारों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जिंदाबाद के नारों से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, बहन जी के आदेश का पालन करना पड़ेगा, तो आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वरना तो 1993 से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं, पैसा छोड़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, हर तरह की आप कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं आता। ये अकेले बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के लोगों की बात कर रहा हूं। बसपा में आज हम दूसरे की कमी निकालने में लगे रहते हैं, कभी अपने बारे में नहीं सोचते मेरे अंदर भी कोई कमी है क्या। जब तक हम दूसरे के बारे में सोचेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। और एक ही रास्ता है, एक दूसरे से भाईचारा बनाना ही पड़ेगा। हम दूसरों से कहते हैं, बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष करके संविधान में ये कहा था, समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, न्याय। बाबा साहब ने पूरे देश के लोगों से कहा। लेकिन मैं कम से कम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर
किसी नतीजे पे पहुंचे, आज दूसरे के बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में सोचना शुरू करो कि मुझे क्या करना है। तो आप एक न एक दिन जरूर गलत ले आएंगे। जब तक आप दूसरे के बारे में सोचते रहोगे, दूसरे की कमियों को निकालते रहोगे, अरे दूसरे में कमी है, नुकसान उसको होना है। अगर उसमें कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई को तो ग्रहण कर लो, उससे तो फायदा ले लो। लेकिन नहीं, हमारे दिमाग में जो पहले से भरा हुआ है, हम जाते हैं मीटिंग में, अपनी सोच लेके जाते हैं, और यहां आपको उदाहरण देता हूं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, कि जब हम बहन जी के पास जाते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, वहां कोई अपने मन की बात नहीं रखता, बल्कि जो बहन जी कहती हैं उसको अपने मन में लेते हैं, है ना? है ऐसा? तो वहां जो जाते हैं हम सब लोग, वहां कुछ सीखने के लिए जाते हैं, मन में द्वेष लेकर के नहीं जाते कि बहन जी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमारे अनुसार चलना चाहिए, ऐसा कुछ लेकर नहीं जाते, बल्कि जो उनका आदेश होता है हम उसको नोट करते हैं और उसको फिर यहाँ करके लागू करते हैं। जो उनका आदेश होता है हम उसी को लागू करते हैं। हाँ, कभी कभी उसके साथ साथ अपनी भी बात रख देते हैं। कैसे? जैसे पूरे देश का तो एक संविधान है जो बाबा साहब ने बनाया, वो पूरे देश पे लागू होता है, उससे कोई अछूता नहीं है कोई मनुष्य। लेकिन राज्य अपने अपने स्टेट में कुछ अपने भी बाई लॉज तैयार करते हैं, लेकिन वो संविधान के अनुसार करते हैं। संविधान को ओवरटेक करके नहीं करते, बल्कि संविधान के अनुसार वे अपने कुछ नीतियां जो वहां के स्थिति के बारे में, जो वहां की परिस्थिति होती है, वहां के अनुसार उसमें कुछ जोड़ देते हैं। और इसी प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर जो जिले में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम जितने भी होते हैं, वे भी अपने बायलॉज तैयार करते हैं। लेकिन वो भारतीय संविधान और स्टेट के बायलॉज को बाईपास करके नहीं बनाते, बल्कि उनके अंदर रहते हुए ही बनाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग भी, जो बहन जी का आदेश होता है, हम उसको आपके सामने रखते हैं। उसमें कभी कभी यहाँ की सिचुएशन के अनुसार हम अपनी भी बात रख देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बहन जी की बात को ओवरटेक कर जाएं। नहीं, पालन तो उसी का करना है। तो ठीक इस प्रकार आपको भी अपने अपने जिले में अपने परिस्थितियों के अनुसार अपना काम कर सकते हो, लेकिन ओवरटेक करके नहीं। ये हमें मिल करके भाईचारा बनाना है, एक दूसरे को सम्मान देना है। एक दूसरे को, बाप कभी कभी अपने बेटे को डांटता है, ऐसा नहीं है कि उसे कोई नफरत होती है, लेकिन उसको सही करने के लिए करता है। तो आप लोगों को भी अगर ये पार्टी को चलाना है, तो आप लोगों को भी सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और मान्यवर कांशीराम साहब के जन्म दिवस के अवसर पर मैंने जो भी बात आपको बताई है, बात तो बहुत सारी, 2 घंटे 4 घंटे में भी खत्म होने वाली नहीं है।
बहुत लंबा इतिहास है, क्योंकि मैंने उनके साथ रह करके काम किया, साथ गाड़ी में बैठकर चले, हेलीकॉप्टर में चले, उनसे कुछ सीखा है और उस सीख को मुझे मौका दिया है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, कि आपने जो सीखा है उसको लागू करो। और आज देश का लगभग सभी प्रदेशों में मुझे जाने का मौका मिला और हर जगह की वस्तु स्थिति से मैं अवगत हूं और अनुभव भी है। मैं चेहरों को देखकर मैं ये बता देता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसी यदि इसमें थोड़ा सा ये और जोड़ लो तो आपका कल्याण हो। लेकिन वो बात बुरी लग जाती है, इसलिए आज मुझे यहाँ आना नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ कोई कार्यक्रम है। मेरा तो नदिया में कार्यक्रम था और मैंने उनसे कहा भी था कि भाई मैं सीधा वहीं नदिया में आकर के रुक जाऊंगा, यहाँ से वहाँ तक अलग से जो है, और शायद उन्होंने व्यवस्था भी की थी। लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ पर जो कार्यक्रम है वो 3 बजे के बाद। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, आप पड़ा मैं तो अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं तो अपने ऑफिस में रुकूंगा। लेकिन सुबह जब मैं उठा और मैं नीचे को आया, क्योंकि अध्यक्ष जी से मेरी ज़्यादा बात नहीं थी इस बारे में, और आपको देखा तो मुझे खुशी भी हुई कि आज यह मनोहर कांशीराम साहब का जो जयंती मनाई जा रही है, ये अच्छी बात है। क्योंकि ये भी तो एक जिला है, वो जिला शायद 24 परगना है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना। यहाँ के अलावा भी और कई है, उत्तर 24 परगना में कई है। विधानसभा है। अच्छा, विधानसभा जिला में नहीं होता। हाँ, जिले में दफ्तर में सुबह पहले डिक्लेयर किया था कि सुबह अच्छा, मुझे ध्यान नहीं, और इसलिए मीटिंग में नहीं करते। इसलिए मीटिंग में तो ओपन मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को मैंने जब भी होता ना, सुबह हम दफ्तर में करते, बाद में बहुत बढ़िया, अच्छा है। हाँ, ऑफिस में तो मनना जरूरी है, इसका एक संदेश जाता है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर जब भी महापुरुषों का कोई कार्यक्रम होता है, जन्मदिन पर, पुण्य दिवस पर, या उनके किसी और विशेष तिथि पर, 14 अक्टूबर पर, तो हमें ऑफिस में भी ये काम करना चाहिए। और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ और मुझे आपके सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। आप सबको बधाई, धन्यवाद। जय भीम, जय मेरा प्रोग्राम कलकत्ता में, कलकत्ता जिला का प्रोग्राम 4 बजे। आपका क्या 4 बजे। तो हर प्रोग्राम जब भी होता ना, तो सुबह हम दफ्तर में 10-11 बजे। अच्छी बात। ठीक है, हमारे नजदीक का लोग बुलाते हैं। कम से कम ऑफिस में भी लोगों को नजदीक का जो रहता है ना, 5-10 मिनट नहीं, बहुत अच्छा। ঠিক আছে। তো আপনারা সবাই আমাদের সদ্য প্রাক্তন মন্ত্রী কাজের সমস্ত বিস্তারিত শুনলেন। তো আমি একটা বিষয় শুধু বলে শেষ করব। একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে সাহেবের কথা। সেটা হচ্ছে 1993 সালের 6ই জুন গড়িয়াতে, দক্ষিণ চব্বিশ গড়িয়াতে কানশিয়ানজির প্রোগ্রাম ছিল গড়িয়াতে। তো 5 তারিখ যখন কলকাতা আসেন তখন তার পেটে ব্যথা ছিল। ওই সময় সাহেবের প্রচণ্ড পেটে পেন ছিল এবং কন্টিনিউ পেন। ডাক্তার দেখাতে কিন্তু হতো না। কিন্তু 6 তারিখে যখন 5 তারিখ আসে, নিজাম প্যালেসে ছিল। 6 তারিখে 5 তারিখ রাত্রে থেকে প্রচণ্ড পেন, 6 তারিখে সকালে প্রচণ্ড পেন। তখন আমাদের যে ভাইস প্রেসিডেন্ট এখন বর্তমানে
অ্যাডভোকেট দিলীপ মণ্ডল, উনি সকালে কানশিয়ানজিকে নেওয়ার জন্য প্রোগ্রামে গাড়ি নিয়ে আসছে, তখন আমাদের গাড়ি ছিল না অ্যাম্বাসেডার। উনি সাহেবের ওই অবস্থা দেখে বেলভু নার্সিংহোমে প্রথমে কানশিয়ানজিকে নিয়ে যায়, আমরা নিয়ে যাই, আমি ছিলাম আগে বেলভু নার্সিংহোমে নিয়ে গেলাম, নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখালাম, টেস্ট করলো পেটে, তার মেডিসিন দিল, কিন্তু পেটে ব্যথা কমেনি। তারপরে ওখান থেকে সরাসরি গড়িয়াতে মিটিংয়ে গেল, ওই পেটে ব্যথা অবস্থায় কন্টিনিউ পেন হচ্ছে তখন অবস্থা দেখার পরে। তারপরে 7 তারিখে 7ই জুন বামফ্রন্ট সরকারের বাংলা में समझ जा तो हिंदी बोलबो तो मिसाए बोलो तो मिशी मिला के तो 7 जून वामफ्रंट सरकार ने बांग्ला बंद बुलाया था। तो 6 तारीख को मीटिंग जो हुआ था साउथ चौधरी कोरिया में, तो उस समय सारे लोग बताया था कि साहब मत जाइए, आपका पेट में दर्द है। बंगाल में ट्रेन तो 6-7 तारीख घुसने देगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था जलपाईगुड़ी का घुघुडांगा एक जगह है जलपाईगुड़ी में, उधर बरसात का ओपन प्रोग्राम था, ये भी ओपन था। तो साहब ने बोला देखो हम बहाना पेट का बहाना देके बंद नहीं करेंगे, जहाँ तक हम जाएंगे वहीं तक जरूर जाएंगे। तो दार्जिलिंग में मैं साहब ने चढ़ाया, तो चलने के बाद जब बारसोई गया, बारसोई बिहार में आते हैं, बारसोई के बाद हम बंगाल में घुसेगा कालकोला में, तो उधर बंद है, रोक दिया ट्रेन, रात को ही रोक दिया, सुबह रोक दिया। तो साहब का इतना पेन था, एसी फर्स्ट क्लास में था, तो इतना पेन था, तो उधर हमने बारसोई में काफ़ी डॉक्टर खोजा। एक क्वाक डॉक्टर मिलता है ना, क्वाक डॉक्टर समझता है जो हाथुरा डॉक्टर, वही बारसोई पूरा ब्लॉक में वही एक डॉक्टर मिला लाया, तो वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं। मैंने फिर वीडियो के पास गया कि भाई आपके पास कोई गाड़ी होंगे तो देना, हम मालदा चला जाएंगे। तो वीडियो बोला देखो इधर कोई 4 चक्का गाड़ी नहीं है, मैं भी साइकिल में चढ़ता हूँ, एक बस है, मिनी बस है, लेकिन वो भी खराब है। तो फिर दिन भर, और एसी तो ट्रेन बंद है, एसी चलता नहीं, तो हमने एक्सप्रेस मास्टर बुला के लाइन लगा के, कभी एसी 2 टायर में देते थे, एसी 3 टायर उस समय नहीं था, एसी 2 टायर में कभी देते, एसी फर्स्ट क्लास में लाइन लगाते करंट से। ऐसे करके दिन गया। दूसरे दिन जलपाईगुड़ी तो नहीं जा पाए, दूसरे दिन हम डालखोला और न्यू उतरा की कोई गाड़ी नहीं मिलेगा। कि तीसरे दिन प्रोग्राम है मालदा में, 8 तारीख को मालदा में ओपन प्रोग्राम है। तो साहब को मैंने उतरा किशनगंज में उतरे इसलिए क्योंकि उधर हम गाड़ी मिल जाएगा साहब को मालदा ले जाने के लिए, क्योंकि डालखोला में नहीं मिलेगा 4 चक्का। तो किशनगंज में उतरने के बाद साहब को मैंने एसी फर्स्ट क्लास में सुला के, फिर हमने ओमनी मिला, मारुति जो ओमनी मिला, लेकिन उधर क्या करो, ऊपर सीढ़ी चढ़ के आना पड़ता है, तो सीढ़ी चढ़ के बहुत कष्ट से आया। तो मालदा से हमारा चीफ सर्किट बुकिंग था, तो मालदा में आया, तो मालदा में डॉक्टर दिखाया, तो मालदा का जो डॉक्टर है वो अच्छा दवाई दिया था, और साहब ने खाने के लिए कोई डिब्बा दिया था। उसमें बाद में वो डिब्बा में बाद में साहब ने बुला के दिल्ली में भी बाद में ले गया था, जो डिब्बा खाने से कोई डिब्बा था कुछ का पता नहीं, अभी याद नहीं। तो डिब्बा काफ़ी दिन साहब ने खाया, तो हम इधर से लेके दिल्ली में मिलना था। तो लेकिन मालदा में जाने के बाद भी मालदा प्रोग्राम में अटेंड किया, लेकिन उधर उतना नहीं आदमी इकट्ठा हुआ था, कोर्ट के पास में मैदान था, उधर गया था। लेकिन थोड़ा टाइम बाद, और दूसरे दिन 9 तारीख प्रोग्राम था बोलपुर में, 10 तारीख था पुरुलिया में। तो साहब ने बोला और आगे नहीं कर पाएंगे, तो हम मेरे को भेज दिया बोलपुर में, और इसमें साहब ने दूसरे दिन जब बोलपुर का मीटिंग था, उसी दिन साहब ने बाइक का गाड़ी से ट्रेन से गौड़ एक्सप्रेस से निजाम प्रेस आ गया, और 11 तारीख को वर्कर्स मीटिंग तक करके साहब ने गया। तो ऐसे करके साहब ने, और सारे जो हमारे जो मंत्री जी भी है वो भी उस समय, अभी तो देखता है मंत्री है गाड़ी में चढ़ता है, लेकिन उस समय जो भी लोग था वो कैसे मेहनत करते थे, वो आज का जो आ रहा है ना वो समझ में नहीं आएगा। साइकिल से मैंने कैसे वो लोग करते थे, आज जो नया आ रहा है ना
वो समझ में नहीं आएगा कैसे मूवमेंट को खड़ा किया उन लोग ने। वो तो दूसरे जो मनुवादी लोग हैं तो वो तो कैसेट करके रख देते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन हम लोगों को तो है ही नहीं, तो उसका तो कुछ नहीं है। कैसे हम लोग पैदल चलते थे, ये चलते थे, कैसे सांप निचलते थे। तो ये मूवमेंट कई लोगों को कुर्बानी से खड़ा है। आज जो हम इधर है ना, ये काफ़ी लोगों को कुर्बानी से, और खास करके यूपी के काफ़ी लोगों को कुर्बानी से आज हम लोग इधर हैं। शुरू में हम लोग भी कुर्बानी देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ज़्यादा ना दो, कुछ ना कुछ हम लोग उनका, तब जाके आपको ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। और आगे जो जनरेशन है वो हमारा जो हिस्ट्री है साहब का, बहन जी का, बाबा साहब का जो हिस्ट्री है, वही आपको प्रेरणा देंगे, स्वाभिमान आएंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट आएंगे, तब जाके ये मूवमेंट आगे बढ़ाएंगे। यही करके हम फिर भी हमारे मंत्री के बाद हम कुछ बोल दिया, इसलिए हमको आपको तो करके आज आप सबको आप फूल है दे देना सबको, पढ़ना भी पड़ेगा और अमल भी करना लक्ष्य पे बढ़ते जाओ हमेशा, काशी राम जी कह गए। लक्ष्य पे बढ़ते जाओ हमेशा, काशी राम जी कह गए। परिवर्तन लहर चलाओ देश में, यही संदेशा दे गए। परिवर्तन लहर चलाओ देश में, यही संदेशा दे गए। बहना के संग चलो, बहना के संग, बहना के संग चलो, बहना के संग, बसपा के संग चलो, बहना के संग, बसपा के संग चलो, बहना के संग। बहना का साथ निभाओ सदा, ये काशी राम जी कह गए। बहना का साथ निभाओ सदा, ये काशी राम जी